हेलो सीयूईटी एस्पिरेंट्स, हम आपके सामने एक और सेशन लेके आए हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। तो आई एम श्योर अब तक आपने पास पेपर्स देख लिए होंगे, पीवाईक्यू सॉल्व भी किए होंगे और मॉक टेस्ट भी लगा लिए होंगे। सो दिस सीरीज ऑफ वीडियोस इज गोइंग टू श्योरली हेल्प यू इन क्रैकिंग that elusive 200 mark figure for the English section of CUET. So without any further delay, let's start. This is a comprehension in front of you. It's roughly 10 lines, 12 lines. ठीक है, छोटा है comprehension क्योंकि CUET के PYQs भी अगर आपने देखे होंगे तो comprehension छोटे ही आते हैं. So let's start reading. A dozen years ago. Now dozen is a period of 12 years. So a dozen years ago, Thornton Wilder and I made the happy discovery that we were both invited to a White House dinner for the French Minister of Culture, Andre Malraux. We decided at once to go together. He was to pick up my wife and me at our hotel and specified that I should have a double old-fashioned ready for him. This is the name of the drink. Thornton did justice to the drink. He also delighted my wife. She was nervous about the dress she was wearing, and he told her it reminded him of the black swan of Tasmania and was so graceful that it danced almost by itself. He illustrated, that is showed, in long, slow undulations. What are undulations? These are up and down movements. His arms waving, ऐसे ऐसे उसने करके दिखाया कि my wife was ham all evening. Now this is a very nice expression. Ham all evening का मतलब है she was overreacting. All evening, ठीक है? So this was our comprehension, and let us now have a look at the questions. There are two questions related to it. Here, the first question, very simple. What does happy mean in the expression happy discovery? तो यहाँ पर happy का क्या मतलब है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? Fortunate, contented, optimistic, clever. जब आपको याद होगा इस पैसेज में शुरू में ही बोलता है I made the happy discovery. So यहाँ पर उसका आंसर होगा fortunate. So you see, it depends on how you are using the word and in which context. Fortunate. ठीक है? Let's move on to the next question. What delighted the narrator's wife? Again, a very simple question. What delighted the narrator's wife? So obviously, बहुत ही simple है. The invitation to the White House, Wilder's compliment, the double old-fashioned drink, her excitement. What? So obviously, your answer, very simple, is going to be B, option 2, Wilder's compliment. Okay? Moving on to the next passage. So, if you are not scared of reading comprehension, if you have done sufficient practice for reading comprehension, then it is not that difficult. Right. So we begin our next passage. The need for knowledge of the Constitution and its functions in the concrete of human nature is great. Just because the teacher's attitude to the subject matter is so different from that of the pupil, the teacher presents in actuality what the pupil represents only in posse. That means in future. So टीचर के पास ऑलरेडी वो नॉलेज होती है जो एक स्टूडेंट को चाहिए होती है, ठीक है? That is, the teacher already knows the things which the student is only learning. Hence, the problem of the two is radically, pragmatically, quite different. When engaged in the direct act of teaching, the instructor needs to have subject matter at his fingers' ends. His attention should be upon the attitude and response of the pupil. To understand the latter in its interplay with the subject matter is his task. यहाँ पर लैटर कौन होता है? देखिए, फॉर्मर होता है जो सब्जेक्ट की बात हमने पहले की हो. लैटर मतलब जिस सब्जेक्ट की बात हमने बाद में की हो. इस केस में लैटर कौन हो गया? स्टूडेंट. स्टूडेंट इन इट्स इंटरप्ले विद द सब्जेक्ट इज हिज टास्क. कौन हो गया? टीचर. तो जब भी आप आरसी पढ़ते हैं तो ये बहुत क्लैरिटी के साथ पढ़ा करिए कि किसकी बात कब हो रही है. जबकि स्टूडेंट के दिमाग में नेचुरली क्या होना चाहिए? सिर्फ अपने ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट का फोकस टॉपिक एट हैंड पे भी होना चाहिए. तो टीचर का फोकस होना चाहिए बच्चे पे कि वो कितना समझ पा रहा है, और बच्चे का फोकस होना चाहिए टॉपिक पे.
or to state the same point in a somewhat different manner, the teachers should be occupied not with the subject matter in itself but in its interaction with the pupils present needs, pupil matlab student, and capacities. Hence simple scholarship is not enough. तो इस तरह से उसने एक्सप्लेन किया है कि केवल क्लास में बोल के पढ़ाना काफी नहीं है, टीचर शुड इंटरैक्ट विद द स्टूडेंट। टीचर के लिए जो कंटेंट, फॉर एग्जांपल मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए, तो ये जो कंटेंट है, मुझे इसको पढ़ाने के लिए आपको इस समय पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन आपको, आपका ध्यान होना चाहिए कंटेंट पे, मेरा ध्यान होना चाहिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। बेसिकली इस पूरे पैसेज में यही बोला गया है। एक चीज और है, देखिए सीयूईटी में जो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं करीब 200 वर्ड्स के, 250 वर्ड्स के होते हैं मैक्सिमम, और हर एक पैसेज में करीब 5-6 क्वेश्चन आते हैं। मैंने बहुत डिटेल में पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है और एक मॉक टेस्ट भी कराया है, पूरा सॉल्व कराया है ऑल 50 क्वेश्चंस। लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि इंग्लिश में सीयूईटी में आपको केवल 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 50, करेक्ट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्पेसिफिकली आपके ऐसे आते हैं कि आप एक रीडिंग में पूरा मैटर समझ सकते हैं और सारे क्वेश्चंस के लिए आपको दोबारा पैसेज पे जाने की जरूरत भी नहीं है। तो मैं वही कोशिश कर रही हूं कि यहाँ पे भी आप वापस पैसेज पे ना जाएं, ठीक है। नाउ इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ दैट, एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिक्स की, उसमें मैंने आपको बहुत क्लियरली समझाया है कि इन्फ्रेंस किसको कहते हैं। आइए इसमें देखते हैं। इन्फ्रेंस के लिए जो सबसे बड़ी चीज है जो हमको हमेशा याद रखनी है कि इन्फ्रेंस के लिए वी हैव टू कोट द लाइन। जैसे हम जो मान लीजिए हम ऑप्शन बी टिक करें तो हमको ये पता होना चाहिए कि पैसेज में ये कहां पर लिखा था, और लिखा जरूर होना चाहिए, ठीक है। सो इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट सिंपल स्कॉलरशिप इज लॉपसाइडेड इन इट्स फोकस। लॉपसाइडेड का मतलब होता है एसिमेट्रिकल। So simple scholarship is lopsided in its focus. Simple scholarship might overlook the subject matter and focuses purely on the student. ये बिल्कुल गलत जवाब होगा, क्योंकि उसने बोला है कि सिंपल स्कॉलरशिप जो है वो स्टूडेंट पे फोकस नहीं करती है, वो उसमें टीचर अपना ही पढ़ाता रहता है। सिंपल स्कॉलरशिप विद अ नैरो फोकस माइट नॉट प्लेस इनफ एम्फेसिस, ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। और एक ऑप्शन इसका और है, वो भी देखते हैं कि सिंपल स्कॉलरशिप विल ऑलवेज बी लॉपसाइडेड। एक और पॉइंट आपको बताते हैं कि जब तक पैसेज में खुद से वर्ड्स लाइक ऑलवेज, नेवर, मतलब ये क्या है, ये दोनों एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, तो आप इस बात से बहुत अवेयर रहिए कि जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं वो जो है अक्सर आपके आंसर नहीं होते जब तक कि पैसेज में खुद ही ऑथर ने बहुत एक्सट्रीम वर्ड्स ना यूज किए, ठीक है। और ज्यादातर ऐसा होता नहीं है, जो भी रिटन मैटर होता है बड़े ही न्यूट्रल प्लेन का रिटन मैटर होता है, और ज्यादातर ऑथर जो है अपनी बात को न्यूट्रल तरीके से कहते हैं। इस वजह से आई एम सेइंग कि बहुत एक्सट्रीम वर्ड ज्यादातर आपके आंसर नहीं होते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। People are always less happy to accept scientific data. They feel that contradicts their preconceived beliefs. अब ये क्या बात कर रहा है कि जो लोग होते हैं वो खुश नहीं होते हैं ऐसे डेटा को एक्सेप्ट करने में जो उनके सोचे समझे गए विश्वास पे ठेस पहुंचाए। प्री कंसीव्ड मतलब थॉट ऑफ फ्रॉम बिफोर। अब इसमें क्या है, जैसे कि क्या हो गया, स्टीरियोटाइप्स। जैसे कई लोग बोलते हैं लड़कियां ठीक से गाड़ी नहीं चला पाती हैं, मे बी यू अग्री मे बी यू डोंट, बट दिस इज अ प्री कंसीव्ड नोशन। फिर बहुत लोग बोलते हैं अच्छा ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत सारी फॉर्मूला 1 कार रेसर्स जो है वो लड़कियां होती। तो सबकी अपनी अपनी सोच है। प्री कंसीव्ड नोशन का मतलब है सोची समझी बात जो आपके दिमाग में बसी हुई है। बट साइंस इजंट सपोज टू केयर। अब देखिए, अब उसने नया पॉइंट बोला है, लेकिन साइंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का प्री कंसीव्ड नोशन क्या था। साइंस कम से कम गुड साइंस, साइंस कहता है साइंस एटलीस्ट गुड साइंस टेल्स अस अबाउट द वर्ल्ड एज इट इज। कहता है साइंस कम से कम जो अच्छी साइंस होती है वो हमें ये बताती है कि दुनिया कैसी होनी, दुनिया जो है वो कैसी है, और ये नहीं बताती कि किसी की इच्छाओं से दुनिया निर्मित नहीं होती, जो है साइंस आपको वैसे ही बताएगी। समटाइम्स व्हाट साइंस फाइंड्स इज कंसिस्टेंट विद अ पर्टिकुलर रिलीजन्स विशेस बट यूजुअली इट इज नॉट। कई बार, कुछ बार, समटाइम्स मतलब कुछ बार ऐसा होता है कि जो साइंस बता रही है वो किसी रिलीजन की विशेष से भी मेल खाता है। जैसे कि कोविड में आपने देखा होगा लोगों ने बड़ा प्रचलन किया कि देखिए नमस्ते जो है वो
भारत में कब से की जा रही है, और अब कोविड को आना पड़ा ये बताने के लिए कि नमस्ते बेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग है। तो कभी कभी साइंस मेल खा जाती है, कभी कभी नहीं खाती, लेकिन यूजुअली जो है वो रिलीजन के साथ मेल नहीं खाती है। अब आप देखिए फिर से एक इन्फ्रेंस क्वेश्चंस मैंने इसलिए ज्यादा बनाए हैं क्योंकि इन्फ्रेंस क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, what can be inferred about good science, select from the given options. So 4 options you have in front of you. A good science is well received by the educated people. एक बात बताइए कि good science के पीछे educated people का क्या रिएक्शन होगा, क्या इस बारे में पैसेज कुछ कहता है? नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। फिर a good science is based on concrete results obtained through testing the hypothesis. वैसे तो इसके बारे में भी बात नहीं हुई, लेकिन अगर आपने पैसेज के को ध्यान से पढ़ा होगा, और एक काम बोलते हैं हम लोग इंग्लिश पढ़ाते वक्त की रीडिंग बिटवीन द लाइंस, अगर आपने वो किया है तो आप समझेंगे कि एक्चुअली पैसेज का पूरा एम यही था, ये बताना कि गुड साइंस जो है वो अपना ग्राउंड होल्ड करती है, उसे किसी के प्री कंसीव नोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे किसी की विशेष से फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, वो तो बस वो स्टेट कर देती है जो एक्चुअली है, ठीक है। सो इस वजह से इस आंसर को हम अभी नेगेट नहीं करते। गुड साइंस एंड रिलीजन आर सेम, ना ये बात कही गई है पैसेज में, तो ये इन्फ्रेंस हो नहीं सकता। A good science will always, again extreme word, will always prove the general populace wrong. General populace, populace मतलब population, अब always prove the general population wrong ऐसा उसे नहीं कहा, उसे बोला है ज्यादातर जो है साइंस रिलीजन के साथ मैच नहीं करती है। तो अब given that all the options are a bit flawed, A, C and D, so the correct answer should be option 2। अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें डायरेक्टली इस बारे में नहीं बात हुई थी और हाइपोथेसिस की भी बात नहीं हुई थी, मगर हम लोग A, C और D में से कुछ और टिक नहीं कर पा रहे, इसलिए यह आंसर B रहेगा। ओके, अनदर पैसेज, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। A being whose activities are associated with others has a social environment. So all of us, हमारी सारी activities एक दूसरे से associated है, तो obviously all of us have a social environment. What he does and what he can do, वो क्या कर सकता है और वो क्या कर रहा है, ये सब किस पे डिपेंड करता है? एक्सपेक्टेशन पे, डिमांड पे, अप्रूवल्स पे और कंडेमनेशन मतलब हेट्रेड ऑफ अदर्स। A being connected with other being cannot perform his own activities without taking the activities of others into account. तो आप कोई भी चीज अकेले कर पाने में सक्षम नहीं है, आपको दूसरे की भी एक्टिविटीज को देखना पड़ेगा अपनी चीजें करने के लिए। A being connected with other beings cannot perform his activities without taking the activities of others into account, for they are the indispensable conditions. Now, what is the meaning of indispensable? मोस्ट नेसेसरी। देखिए यहाँ पे इंडिस्पेंसिबल जो वर्ड है, डिस्पेंसिबल का मतलब होता है अवॉइडेबल, तो इनडिस्पेंसिबल क्या हो जाएगा? नॉट अवॉइडेबल, जिसको आप छोड़ के ना रह पाए। When he moves, he stirs them, he affects them, AFFECTS, जब वो मूव करता है तो वो दूसरों को भी किसी ना किसी तरह से इफेक्ट करता है। एंड रेसिप्रोकली मतलब आपने कुछ किया समाज के लिए, समाज किसी तरह से अफेक्ट हुआ, समाज में कुछ हुआ और आप भी अफेक्ट होंगे, तो ये वाइसी वर्सा का सिस्टम चलता है। We might as well try to imagine a businessman doing business, buying and selling all by himself. Now he is giving you an example. वो अभी अपनी बात उसने कही ना कि आपका कोई भी काम ऐसा नहीं है कि दूसरे से अनरिलेटेड हो, है ना, आपका हर काम एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। सो अब वो कह रहा है कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है कि मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस कर रहा है, खरीद रहा है सामान, बेच रहा है सामान, सब अपने आप सोच रहा है, थिंकिंग इट पॉसिबल टू डिफाइन द एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ हिज आइसोलेटेड एक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेशन? सेपरेट एक्शंस। तो आइसोलेशन मतलब सेपरेट, SEPARETE। तो एक बिजनेसमैन ये सोचता है कि मैं अपने घर से या अपनी दुकान से बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी एक्टिविटी का क्या ही फर्क पड़ रहा है ज्यादा समाज पे, लेकिन ऑथर कह रहा है ऐसा नहीं है, अभी वो आपको बताएगा भी क्यों। The manufacturer, moreover, second line, is as truly socially guided in his activities when he is laying plans in the privacy of his own counting house as he is when he is buying raw material or selling his finished goods.
कह रहा है ऑथर कि लेकिन ये उस बिजनेसमैन की गलत फहमी होगी अगर उसे लगता है कि वो एक आइसोलेटेड एरिया में काम कर पाता है। क्यों? क्योंकि जब वो एक अपने घर में भी काउंटिंग कर रहा है चीजों की, या बेच रहा या मतलब अपना प्लान बना रहा है कि कैसे मुझे बिजनेस करना है, तब भी वो बाकी लोगों से कनेक्टेड है। उतना ही कनेक्टेड है जितना कि वो उस टाइम होता है जब वो अपना सामान बाइंग और सेलिंग कर रहा हो। देखिए, बाइंग और सेलिंग आपको किसी ह्यूमन से ही करनी पड़ेगी डायरेक्टली, राइट? इवन इफ यू आर यूजिंग Amazon, तो कंप्यूटर के दूसरे एंड पर ह्यूमन ही बैठा है अभी तक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका हर काम सोसाइटी से अफेक्ट होता है और इफेक्ट डालता भी है। फाइनली देखते हैं लास्ट लाइन, थिंकिंग एंड फीलिंग दैट हैव टू डू with action in association with others. Thinking and feeling that have to do with action in association with others is as much a social mode of behavior as is the most overt cooperative or hostile act. Most overt का क्या मतलब होता है? Most obvious, easily noticeable. Hostile, full of enmity. चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाएंगे हम इस क्वेश्चन में। फिर से एक इन्फरेंस क्वेश्चन है, इट कैन बी इन्फर्ड दैट। चारों ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है? और अब आपको ध्यान से ये समझ में आ जाना चाहिए कि इन चारों ऑप्शंस में से क्या आंसर होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है, इन आवर सोशल वर्ल्ड वंस थिंकिंग, फीलिंग्स एंड एक्शंस कैन नॉट स्टैंड इन आइसोलेशन टू एक्शंस ऑफ अदर्स। ठीक है, फिर कहता है, अब अगर आप ए और सी ऑप्शन को देखें तो लगभग सेम है। इन आवर सोशल वर्ल्ड थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्शंस ऑफ अ पर्सन कैन नॉट स्टैंड इन आइसोलेशन टू दोज ऑफ अदर्स। ठीक है, क्या अंतर है? यहां पे ऑप्शन ए में उसने स्पेसिफाई कर दिया थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्शंस टू एक्शंस ऑफ अदर्स, और ऑप्शन सी में उसने एक्शंस ही लिखा है टू दोज ऑफ अदर्स। तो क्योंकि दोज लिखा है यहाँ पे मतलब हो गया थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्शंस, और क्योंकि एक्शन स्पेसिफाई कर दिया ऑप्शन ए में, तो इसका क्या मतलब हो गया? ओनली एक्शंस। ये दोनों में अंतर है। बी, इन आवर सोशल वर्ल्ड थिंकिंग, फीलिंग्स एंड एक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल आर ड्रिवन बाय मोटिवेशंस एंड थॉट्स ऑफ अदर्स। ये तो बिल्कुल गलत है। मोटिवेशन मान सकते थे, लेकिन दूसरों के थॉट से ड्रिवन नहीं होता है। ठीक है, फिर कहता है, इन आवर सोशल वर्ल्ड थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्शंस ऑफ अ सिंगल पर्सन आर जक्स्टापोज। जक्स्टापोज का मतलब होता है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली इन द पास्ट विथ दोज ऑफ अदर्स। आप बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन सी है। तो उसने समरी में भी लास्ट लाइन में बोला भी था कि जो एक व्यक्ति सोचता है, जो एक व्यक्ति महसूस करता है और जो एक व्यक्ति करता है, वो अकेले नहीं देखे जा सकते हैं, वो सारे जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्शंस की बात हो गई है, हमें थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्शंस की बात करनी थी। ठीक है, नाउ आई होप the concept of reading comprehension, inferences and how to attempt short passages is abundantly clear from this particular session. We will be continuously taking more sessions for your benefit, and please work hard to score 200 marks in your English section because that is easily achievable. बहुत आसानी से नंबर आ जाएंगे just because कि आप स्टडी प्लान बनाइए, आप अपना सिलेबस पूरा, सबसे पहले आप सिलेबस देखेंगे, उसके बाद अपना स्टडी डिवाइस करिए। टाइम टेबल पे भी एक वीडियो बनाई थी, रेकमेंडेड बुक्स पे भी वीडियो आ चुकी है। प्लीज कंटिन्यूसली स्टे इन टच एंड अपना एक शेड्यूल बना के आप डेफिनेटली इंग्लिश सेक्शन में फुल मार्क्स ला सकते हैं।